अरे यार सचिन, एक बात बता। हाँ बोलो। तुझे तो पता ही है कि 2 हफ्ते के बाद से जेईई मेंस शुरू होने वाला है। हाँ वो तो पता है मेरे को। तो तुझे ये भी तो पता है ना कि इस वक्त सबसे ज्यादा स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करे, किस तरीके से पढ़ाई करे, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करे ताकि हमारा परसेंटाइल अल्टीमेटली इंक्रीज कर सके। और तुझे भी तो अपने टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन तूने भी तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था ना। तो क्यों ना इन सारी चीजों को तू इन जे स्टूडेंट के साथ शेयर कर। ठीक है, चलो ये सारी चीजें इन सारे जे स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। I know within a couple of weeks your JEE Mains second attempt is going to start, and this is a very stressful time for all of you. I know you are still facing lots of problem, having lots of confusion in your mind, searching solution here and there, but still you are very tensed and stressed. But wait, this is not the end. Hello and welcome back. My name is Sachin and I am a first year student at IIT Kharagpur. And today in this video, I am not only going to tell that what the biggest mistake you JSprint are doing right now, but also the best possible solution that you must follow to score a very high percentile in your upcoming JMNC examination. So the only request that I want to make from you, the people that don't skip the video, please watch the video till end, because I am going to tell not only the mistake that you are doing, but also the solution, the best solution. So without any delay, let's begin this video with. So now let's begin with the very much first point. So first of all, I want to tell you that what is the biggest mistake that you people are doing right now is that कि बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि अगर हमारी सिलेबस 90% से ज़्यादा कवर नहीं हुई तो हमें एक अच्छी परसेंटाइल नहीं मिलेगी। तो अगर आपका मानना ऐसा है और अगर आप सिलेबस को कवर करने के पीछे सिर्फ भाग रहे हैं तो दिस इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक एंड एट लास्ट यू विल रिग्रेट योरसेल्फ। तो फिर आप पूछेंगे तो इस वक्त हम करें क्या। तो इस वक्त आपका सबसे ज़्यादा फोकस PYQs पे होना चाहिए। सॉल्व PYQs as much as possible, क्योंकि PYQs से डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप PYQs उठाइए और जेईई मेंस के अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर को उठाइए और टैली करके देखिए। आपको पता चलेगा कि PYQ से तो क्वेश्चन टू दी पॉइंट आते हैं। और आपको एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप शुरू से कोई एक बुक फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप SCB शुरू से बना रहे हैं, तो इस वक्त भी आपको SCB में SCB को एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन बनाया SCB का, उस वक्त वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, लेकिन उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने कहीं से देखा और फिर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस वक्त आपको करना क्या है कि उस क्वेश्चन को फिर से आपको रीअटेम्प्ट करना है और सॉल्व करना है। उससे होगा क्या कि जो कॉन्सेप्ट हमसे फर्स्ट टाइम में नहीं बना था या फिर वो जो कॉन्सेप्ट हमें फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया था वो फिर से हमारे माइंड में मेमोराइज्ड हो जाएगी। तो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। सो गिव मॉक टेस्ट as much as possible on regular basis. Why I am saying this? What is the importance of mock test? So let me tell you one thing, that your percentile is much more dependent on your shift, because if the question paper is easy, it is easy for everyone. If the question paper is hard, it is hard for everyone. So you have to adjust yourself according to the need and demand of the question paper. Most of the JS parents right now doing this mistake, that they are not giving mock test on proper slot. So you have to practice mock test on proper slot on both of the slot. So don't make this mistake. Give mock test as much as possible on regular basis, because by giving mock test your mindset will change and your mindset will adjust according to the demand and need of the question paper. So now let's come to the third point. Don't take rest after the test, because if you take rest after the test then you waste your test. So what is the importance of this line? Why I am saying this? Simply, अगर आप टेस्ट देने के बाद आप उसका फीडबैक नहीं लेते, और दिस इज द वेरी बिगेस्ट एंड दिस इज द वेरी मोस्ट कॉमन मिस्टेक अमंग अस, कि हम टेस्ट तो देते लेकिन फिर उसका फीडबैक नहीं लेते। उससे होता ये है कि उसी मिस्टेक को हम फिर अगली टेस्ट में रिपीट करते हैं, फिर वही मिस्टेक को हम जेईई मेंस के पेपर में भी करके आते हैं और एट लास्ट सिर्फ हमें रिग्रेट होता है। तो आपको करना क्या है, आफ्टर एवरी टेस्ट आपको एक प्रॉपर फीडबैक कॉपी बनाना है। आप अपने मिस्टेक को उस पर नोट डाउन करें ऑन अ रेगुलर बेसिस आप उसे रिवाइज करें। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन में 2 + 2 = 5 लिखा, तो उस मिस्टेक को भी आप अपने मिस्टेक कॉपी पे नोट डाउन करें, ताकि जब अगली बार आप टेस्ट दें तो उस मिस्टेक से आप पहले से ही अवेयर हो चुके होंगे, क्योंकि आपने वो मिस्टेक उस कॉपी में नोट डाउन करके रखा है और आपने उसे बार बार रिवाइज भी कर रखा है। So before moving to the fourth point, let me tell you one thing, that JEE Mains is more about the quantity. For example, आपको कोई का स्पेसिफिक चैप्टर अच्छे से नहीं आता, लेकिन उस स्पेसिफिक चैप्टर का फॉर्मूलास आपको अच्छे से पता है, तो JEE Mains में इसके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि उस स्पेसिफिक चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि JEE Mains में बहुत से क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो माय फोर्थ पॉइंट इज दैट आपको सारे फॉर्मूले
फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और मैथमेटिक्स के भी टू द टिप आपको याद होने चाहिए। और अभी तक आपने अगर एक शॉर्ट नोट नहीं बनाया है फॉर्मूलेस का, तो प्लीज़ आप अभी और आज आप इस वीडियो को देखने के बाद एक शॉर्ट नोट बना लीजिए फॉर्मूलेस का, और उस फॉर्मूलेस को आप रेगुलर डेली रिवाइज करें। उससे होगा ये कि आपका जेईई मेंस में टाइम भी बचेगा और आपका मार्क्स भी इंक्रीज करेगा। So now let's move to the fifth point. This time be away from the social media as much as possible. खास करके इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट से दूर रहे, और जितना हो सके इस वक्त अभी गाने सॉन्ग्स ना सुने, क्योंकि इससे आपका माइंडसेट बिल्कुल खराब हो जाता है, आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट कर जाता है, आपका माइंड जिस दिशा में फोकस्ड होना चाहिए वहां से डाइवर्ट होकर के कहीं और चला जाता है। इस वक्त आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ देना है। बस जेईई खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद खुलकर सोशल साइट्स यूज कीजिएगा, लेकिन दिस टाइम प्लीज स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया, खास करके इंस्टाग्राम रील्स और साथ ही साथ यूट्यूब शॉर्ट्स। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस टाइम यू हैव टू मेंटेन अ गुड बायोलॉजिकल एंड स्लीप साइकिल। बी अवे फ्रॉम ईटिंग जंक फूड। जितना हो सके हेल्दी डाइट ले, सुबह शाम एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। इससे होगा ये कि हमारा माइंड और बॉडी एक साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और जब हमारा माइंड और बॉडी एक साथ कोऑर्डिनेट करता है तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करता है, और इसका फायदा आपको अल्टीमेटली जेईई मेंस के पेपर में मिलेगा, और अनएक्सपेक्टली आपका नंबर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, एंड एट लास्ट आपका परसेंटाइल भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल जेईई एस्पिरेंट। बहुत से स्टूडेंट इस वजह से परेशान रहते हैं कि उन्हें पढ़ने का मोटिवेशन नहीं मिलता, उन्हें अपने गोल के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता है। वो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन उनके अंदर वो मोटिवेशन 5 मिनट 10 मिनट या 1-2 घंटे तक रहती है, फिर खत्म हो जाती है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, द अल्टीमेट मोटिवेशन इज द फेस ऑफ योर फादर एंड मदर। लुक एट द फेस ऑफ योर मदर, लुक एट द फेस ऑफ योर फादर। वो अपनी खुशी को साइड रख करके तुम्हारी खुशी को प्रायोरिटी देते हैं। अगर तुम्हें एक खरोच भी आती है तो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए कोई आगे आए या ना आए, तुम्हारे मम्मी और पापा हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। तुम भी उन्हें कुछ रिटर्न में दो। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिसके अंदर अपने सपनों की एनर्जी होती है ना, उसके पास बीमार होने तक का भी वक्त नहीं होता। जिसके पास अपने सपनों की एनर्जी होती है, उसके पास ये सोचने तक का वक्त नहीं होता है कि ये सही होगा या गलत होगा। जस्ट डू इट एंड मेक इट राइट। एक बात और, जब तक आपका जेईई मेंस का एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक आपको ये बात अपने दिमाग से निकाल देना है कि मुझे एक अच्छी कॉलेज मिलेगी या नहीं, मुझे एक अच्छी ब्रांच मिलेगी या नहीं। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होना चाहिए, इस चीज पे होना चाहिए कि कैसे भी करके मुझे एग्जामिनेशन पे अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करना है। और आपके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि तेरी मंजिल ढूंढे तुझे ये विश्वास हो तुझे, तेरी मंजिल ढूंढे तुझे ये विश्वास हो तुझे, करेगा इस एग्जाम को क्रैक विद अ वेरी हाई परसेंटाइल, ये विश्वास है मुझे। और ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा कि क्या लेकर के आए थे तू, क्या लेकर के जाओगे। इस मिट्टी में पैदा हुए, इस मिट्टी में मिल जाओगे। खाली हाथ तो तू आया था, क्या खाली हाथ ही चला जाए। I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming.